Okay, hello everyone. Good afternoon to all my dear students of class 10. Welcome back to our chemistry live streaming class. So please join fast because already I have sent a link to you all. So just click on that link and join the class, everybody. Okay. Now, so all my dear students, today what we have to discuss over here in our today chemistry class. Today we will finish our all the chemical compounds of the chapter number 2. I think 2 or the 3 chemical compounds were left. So today in our live streaming class, I will complete all this part. Okay. So from next term, I will start your new chapter, the metals and the non-metal. Okay. So today I will finish your particular chapter and I will give one test to you in our Google Classroom. So first of all, my dear, those who have not Google Classroom for the chemistry subject, please join it. Okay, because today I will finish this particular chapter and I will give the one question paper of this particular chapter. So please solve and submit to the same. Okay, chalo. So now in this particular chapter today, what we have to discuss, today we will finish the chemical compounds. Okay, if you remember that how many chemical compounds we have finished, we have completed the 2 to 3 chemical compound. Which one? Common salt हमने पढ़ लिया. After that, the second chemical compound, sodium hydroxide, we have finished. Okay, so the 2 chemical compound we have finished, which are the sodium chloride or the common salt, and the second one is the sodium hydroxide. Okay, so these 2 chemical compound already we people have finished, and now the next one is the 2 chemical compound now we have to discuss, which are baking soda, and the next one is washing soda. This is the very much important part. Baking soda and the washing soda. Okay, so my dear student, if you remember the last class I discussed with you, can anybody text me what is the, okay, somebody is saying that board is okay. Okay, is it clear now? Is it clear? Is the board is visible now? Please text me. Now is it more visible? Clear to you about the board? So anybody can text me. Is the board now visible to everybody? Okay. Okay, good. Now, so we have now completed this particular chemical compound, baking soda and the washing soda. But anybody can text me. In the last class I discussed with you, what is the basic difference between the baking soda and baking powder? Can anybody text me? What is the basic difference between baking soda and baking powder? Can anybody text? In our last class already I have discussed with you. कोई बताएगा? What is the basic difference? देखो, सबसे पहले बात तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक. The washing soda formula is Na2CO3.10H2O. This is the basic chemical formula of these 2 compounds. Okay, yes, very good, Sibal. Sibal wrote the baking soda means sodium bicarbonate. Yes, exactly. It is the sodium bicarbonate. ठीक है ना? And the washing soda is called as the sodium carbonate. Okay, this is called as the sodium carbonate. If any one of the chemical compound dot H2O is there, so it means that hydrated. The meaning of the dot H2O is the hydrated salt. Okay, but my question is not that. My question is that anybody can text me what is the basic difference? What is the basic difference between baking soda and baking powder? Can anybody write it answer? Can anybody text me? What is the basic difference? Can anybody text me? What is the basic difference
between the baking soda and baking powder? Okay, Arpita Bonde wrote the nature. Okay, it's not the right answer, Arpita. Anybody else? Can anybody text me what is the basic difference between the baking soda and baking powder? देख सकते हो? What is the basic difference? देखो मैं बताता हूं. एक्चुअली क्या है, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा है. जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है ना, प्लीज रिमेंबर, आई होप इन आवर लास्ट क्लास आई डिस्कस विद यू व्हाट इज द बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड्स. ओके, जब आप इन दो केमिकल को जोड़ते हो, when these two chemicals are combined, then you will get the baking powder. मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको बताया था. मैंने कहा था ना कि आजकल बहुत ज्यादा बेकरी केक का बहुत जमाना चल रहा है. वहां पे तुमको मैंने सिखाया था व्हाट इज द बेकिंग पाउडर. द बेकिंग पाउडर इज द बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड. एडिबल एसिड मतलब ऑर्गेनिक, टार्ट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया. सो दीज एसिड्स आर कॉल्ड द एडिबल एसिड्स आर देयर. So when the edible acids are added with the baking soda, then what the chemical you will get, that chemical is called as the baking powder. Okay, so is the difference okay to everybody? Is the difference okay to everybody? What is the difference between the baking soda and baking powder? Okay, good. समझ, ये बेसिक सा डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में. तो अपन जो बेकरी में यूज करते हैं ना, दैट इज द बेकिंग पाउडर. समझ गए ना बात को. और बेकिंग जो सोडा है ये खाने वाला सोडा है, जिसका भी अपन किचन में यूज करते हैं, है ना. छोले वाला जब बनते हैं तो इसका यूज होता है, याद करो. अब छोले का नाम सुन के मुंह में पानी आएगा तुम्हें. चलो, सो नाउ हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, नाउ वी हैव टू राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. Method of preparation. How the baking soda will prepare, how the sodium bicarbonate will prepare there. तो कैसे होता है? By the reaction of aqueous sodium chloride, by the reaction of the aqueous sodium chloride with carbon dioxide and ammonia. Okay, these three chemicals are required. So how the baking soda will prepare? The baking soda will prepare by the aqueous NaCl and the CO2 and the NH3 will combine. Okay, so what is the reaction? The reaction will like this. NaCl aqueous है तो वहां पर water होगा, ठीक है ना. Then carbon dioxide, then ammonia, NH3. Okay, when these chemicals are combined, then you will form the baking soda. अब क्या बनेगा यहाँ पर? Can anybody complete this reaction? Because our last lecture already people are discussed. Can anybody complete this reaction? कोई बताएगा यहाँ पर क्या बनेगा? Can any one of the student complete this reaction? Any one of you? What will be the product formation? Okay, very good, Yog. Shabash. So Yog Ambekar wrote the right answer. That is the, देखो एक तो आप क्या बना रहे हो, एक तो बेकिंग सोडा बना ही रहे हो, तो ये तो बनेगा ही बनेगा, है ना. ये तो बनेगा. गुड वैष्णवी. और साथ ही साथ अगर अमोनिया है तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा. ओके, these two chemical will form over there, है ना. So this is the way to prepare the baking soda. So how the baking soda will prepare? How the baking soda will prepare? The baking soda will prepare by the reaction between sodium chloride and the carbon dioxide with ammonia. ठीक है. So when these chemicals are combined, the sodium bicarbonate will form. Very good. Good, shabash. Sibal and Vinita also wrote the right answer. Very good. So this is the way to prepare sodium bicarbonate. या ऐसे हम बेकिंग सोडा प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. अब देखो इस पर बेस्ड एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. और क्या बनता है क्वेश्चन? नाउ द कंपाउंड इज NaHCO3, है ना. ये कंपाउंड
Now, one question for you people. Anybody can text me. The sodium bicarbonate is the acidic compound or the basic compound or it is the salt. What will be your answer? Sodium bicarbonate is the acid or the base or the salt? क्या है भाई? Yes, very good. शाबाश. So Sybil wrote the right answer. The sodium bicarbonate is the salt. It is not the acid nor base. ठीक है? तो ये जो हमारा कंपाउंड हो गया वो क्या हो गया? सॉल्ट हो गया. ये सॉल्ट. तो ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है. ये सॉल्ट है. ठीक है ना? सोडियम बाइकार्बोनेट इज द सॉल्ट. ये एक सॉल्ट है. ठीक. चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ कि अगर ये सॉल्ट है ना? इफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज द सॉल्ट, अगर ये हमारा एक सॉल्ट है तो ये सॉल्ट भी कौन से नेचर का है? Can anybody text me? This salt is the acidic salt or the basic salt or the neutral? What will be your answer? Anybody can text? Okay, very good. So Yog wrote the basic salt. Riya, then I think Kirti is there. Ranvijay, Sania, Ayush, Lakshman, Vidita. So many students are writing the answer. My dear, you please remember it is the basic salt. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखो. इट इज द बेसिक सॉल्ट. इट इज नाइदर एसिडिक नॉर न्यूट्रल. ओके, सो द स्टूडेंट हु रोट द बेसिक सॉल्ट, दोज आर एब्सोल्युटली राइट. ओके, सो द स्टूडेंट हु रोट द एसिडिक, यू प्लीज करेक्ट योर आंसर. इट इज द बेसिक सॉल्ट. ये ना तो एसिडिक है ना ही न्यूट्रल है, ये बेसिक सॉल्ट है. ओके, दिस इज द बेसिक सॉल्ट. ये बेसिक है और अगर ये बेसिक होगा so then what is the pH for that? Greater than 7. ठीक है ना? इसलिए जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, for the sodium bicarbonate the pH will be more than 7. इसका जो pH है वो 7 से ज्यादा है. ठीक है ना? अब कैसे प्रूफ करोगे? देखो, एक्चुअली जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट में वाटर ऐड करते हो ना, when the water will react with this particular salt, what the product you will form? You will form NaOH plus H2CO3. Okay, NaOH and the H2CO3. This is the sodium hydroxide, and H2CO3 is the which acid? It is the carbonic acid. It is the carbonic acid. ठीक है? तो अब देखो क्या होगा? Out of the sodium hydroxide and the carbonic acid, it is the strong base. सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है ना? और जो कार्बोनिक एसिड है, दिस इज द वीक एसिड. दिस इज द वीक एसिड. ओके, सो व्हिच टाइप ऑफ द नेचर? इसका मतलब ये कैसा सॉल्ट है? इसका मतलब ये जो सॉल्ट है ये बेसिक है. इट इज द बेसिक सॉल्ट. ओके, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट? इट इज द बेसिक सॉल्ट. This is a very good question for you people, my dear, because in your board paper question can come like this. पहला क्वेश्चन कैसे आएगा? सीधे ऑब्जेक्टिव होगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है? आपने खट से आंसर डाल दिया, इट इज द बेसिक. ठीक. दूसरा आएगा, व्हाट टाइप ऑफ द नेचर इज हैविंग द बेकिंग सोडा, एक्सप्लेन विद रिएक्शन. तो फिर आपको ये रिएक्शन लिखना होगा. आप उसमें वाटर ऐड कर दोगे तो एक बेस बन जाएगा और एसिड बन जाएगा. बेसिक पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है. दैट्स व्हाई. अब देखो, आपने पढ़ा है ना, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, जब कभी भी अपन इन डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है ना तो इनो खाते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं. क्यों? एक्सेस एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है. बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट आता है, इनो ऑन एसिडिटी गॉन. क्यों? क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जो बेकिंग सोडा है, ये बेसिक है. तो जितना भी एक्सेस एसिड होता है पेट में, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है? दैट्स व्हाई ऑल दोस substances, all those things which are used to remove the excess acidity, the sodium bicarbonate is there. ठीक है ना? वहां पे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है. ठीक, चलो भाई, एक तो ये क्वेश्चन बन गया. नाउ आफ्टर दैट, ठीक है, तो पहला आपने क्या पढ़ा कि हाउ द बेकिंग सोडा विल प्रिपेयर. फिर आपने रिएक्शन पढ़ा. देन यू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द बेकिंग सोडा, है ना? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल. ये हमारे इसके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए.
You please remember the very good question because and the second question is that कि what is the basic difference between the baking soda and the baking powder. बड़ा अच्छा सवाल है वो आपने पढ़ा ठीक है ना. Now then the second thing is that very much important uses of baking soda. Uses of baking soda है ना. सोडियम बाइकार्बोनेट के uses है ना. Uses of the baking soda. It is also the good question for you. ठीक है ना. तो पहले क्या बोलते थे मेडिसिन है ना. पहली बात तो ये मेडिसिन पे यूज होगा. मेडिसिन पे होगा. कौन सी मेडिसिन में होगा. मेडिसिन वो भी जो एज एन एंटासिड होंगी. एज एन एंटासिड या बोल देते हैं इनडाइजेशन है ना. इनडाइजेशन रेमेडी. इनडाइजेशन रेमेडी की जो मेडिसिन है उसमें यूज हो जाएगा. पहला यूज तो ये याद रखो. दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है माय डियर. इट इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर. द वेरी मच इंपॉर्टेंट यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी. ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई. देखो मैं तुम्हें साइंस पढ़ा करके रटा नहीं रहा हूं. कॉन्सेप्चुअल पढ़ो. कैन एनीबॉडी टेक्स्ट मी व्हाई सोडियम बाइकार्बोनेट एट or used in fire extinguisher. Anybody can text. बहुत सारे अच्छे बच्चे जुड़े हैं. कोई बताएगा. Anybody can text me why the sodium bicarbonate can used as a fire extinguisher. अच्छा एक बात बताओ. Which gas used in the fire extinguisher? No soil. This is not the right answer my dear. वो तो obvious सी बात है फायर को रिड्यूस करेगा वो. बट क्यों यूज होता है. Yes, very good Riya. Shabash. Carbon dioxide gas is used as a fire extinguisher. Very good. So Riya, Sibal, Sania, Ayush, Saloni, Ranvijay, Vaishnavi, they all are writing the absolutely right answer. ठीक है. तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों यूज करते हैं इसको. क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है. ठीक है ना. सोडियम बाइकार्बोनेट जो कार्बोनेट है ना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है. क्योंकि वह कहीं ना कहीं जब ये NaHCO3 है ना. ये जो NaHCO3 है ना. देखो सीधा सा बात है. HCO3 को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा. H2O plus CO2. जब कभी भी आप HCO3 को ब्रेक करोगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में. ठीक है ना. मतलब बहुत लॉजिकल बात है कि जो हमारा बेकिंग सोडा है इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है. तो जैसे ही आप इसमें एसिड डालोगे ये क्या बना देगा. ये यहां से बना देगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है. ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है. यू प्लीज रिमेंबर दैट. ठीक है ना. ये मिक्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड से. ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखो है ना कि क्यों ये यूज होता है. क्योंकि इट इज मिक्सेस विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज्ड एज द फायर एक्सटिंग्विशर. और वहां जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होगा. ठीक है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. यू प्लीज रिमेंबर दैट. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट. Now, after that, so ये याद रखो ये important है. So is the compound is okay to everybody? All the reaction and the properties of the baking soda is okay to everybody? Please text me. Okay, very good. Shabash. Now, moving to the next one. Shabash. बहुत बढ़िया. Very good. And now we are moving to the next chemical compound. Okay, and the next chemical compound we are going to discuss that is washing soda. Washing soda. The formula is Na2CO3 dot 10H2O. Okay, the second chemical compound is the Na2CO3 dot 10H2O. It is called as the washing soda. ठीक है. अब देखो भाई ये कैसे होगा. बहुत आसान तरीका है. When baking soda, you please remember that whenever the baking soda is heated, जब भी कभी अपन बेकिंग सोडा को हीट करते हैं
then always you will get the washing soda. तो हमें यहाँ पे washing soda मिलता है. बहुत बेसिक सा लॉजिक है ना? Whenever the baking soda is heated, you will get the washing soda. तो आपको मिलेगा. कैसे मिलता है देखो. What is the formula of the baking soda? It is the NaHCO3. ये देखो, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, है ना? इसके जब आप दो मॉलिक्यूल ले लोगे, मैं यहां लिख देता हूं 2NaHCO3. This is the baking soda. ये हमारा बेकिंग सोडा हो. ठीक, जब आप हीट करोगे व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा यहां पर? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. ये क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट. Na2CO3 इज द सोडियम कार्बोनेट. व्हाट विल हैपन? फिर क्या करो, इस Na2CO3 में अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट Na2CO3 dot 10H2O, and this is called as the hydrated sodium carbonate, or it is called as the washing soda. Okay, so this is the way to prepare washing soda. So how the washing soda will prepare? The washing soda will be prepared by the heating of baking soda. तो पहले क्या करो, बेकिंग सोडा को हीट कर दो. बेकिंग सोडा को हीट कर दो. अच्छा, anybody can text me what is the name of this reaction? Anybody can text me what is the name of this first chemical reaction? ये जो मैंने पहला केमिकल रिएक्शन लिखा है, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है? Which type of the reaction it is? Can anybody text me which type of chemical reaction it is? First one. No one is writing. कोई नहीं लिख रहा है भाई, कोई भी नहीं लिख रहा है. Yes, very good, shabash. So Sohail Pathan wrote the answer and is absolutely right. Good, shabash. Okay, very good, Sanya. Sival also wrote the right answer. Yog, Vijay, Rashtrali, you please check your answer. I am asking the name of the reaction. Okay, good, Tanali, shabash. So it is the type of the thermal decomposition. Okay, फिर आप क्या करो, उसमें वाटर ऐड कर दोगे तो हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा. So this is the very much important part. ठीक है ना? गुड, शाबाश. नाउ आफ्टर दैट, तो ये साहब हमारे पास एक रिएक्शन आ गया कि हाउ वी पीपल आर एबल टू प्रिपेयर द वॉशिंग सोडा. तो कैसे बनता है? जब आप बेकिंग सोडा को हीट कर दोगे तो वहां से वॉशिंग सोडा बन जाएगा. चलो, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन बता दूं. एक कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन सीखना चाह रहे हो? आर यू रेडी टू डिस्कस वन कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन? एक हो जाए, एक हो जाए भाई. एक क्वेश्चन सीखना चाहोगे कंपटीशन का? क्वेश्चन क्या है देखो. So this is the question. This is the question. Okay, the question is that what do you mean by efflorescent salt? This is the question. ठीक है, ये आप अगर पॉलिटेक्निक का पेपर में बैठोगे या साइंस ओलंपियाड में डालोगे तो वहां आएगा कि what do you mean by the efflorescent salt? What do you mean by the efflorescent salt? देखो मैं बताता हूं. efflorescent salt क्या होते हैं बच्चों? efflorescent salt वो salt होते हैं कि जब आप उनको ओपन एयर में रखते हो, the such type of the salt when you kept in open air, after some time it becomes hydrated. आपने बिल्कुल सूखा पाउडर ऐसा रखा और कुछ देर के बाद आप क्या पाते हो कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो व्हाट यू कैन से अबाउट द फ्लोरोसेंट सॉल्ट? दीज आर द सच टाइप ऑफ द सॉल्ट व्हिच हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड बिकम्स हाइड्रेटेड. Okay, so these type of the salt is called as the efflorescent salt. ठीक है ना? You please remember that. ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? efflorescent salt. It's called as the efflorescent salt. Means the process of the loss of the water. मतलब क्या हो गया? efflorescent salt कैसे है? ये loss of water कर देंगे. ये loss of water कर देंगे जब आप उनको रखते हो. सोडियम, देखो बहुत ध्यान से समझो भाई, ध्यान से एकदम रिलैक्स में आके. सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, जो वॉशिंग सोडा है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है. विच टाइप ऑफ द सॉल्ट इट इज?
हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये हाइड्रेटेड है, लेकिन जब आप इसको ओपन एयर में रखोगे तो ये धीरे धीरे पानी के मॉलिक्यूल हटाता चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंट सॉल्ट। यू प्लीज रिमेंबर, ठीक है ना, मतलब द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ हाइड्रेटेड सॉल्ट टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, मतलब अगर आप वॉशिंग सोडा देखोगे तो वो आपको पाउडर के जैसा दिखेगा, एकदम ड्राई पाउडर, लेकिन जब आप उसको रखते हो ना थोड़ी देर के लिए तो आपको धीरे धीरे वो क्या लगेगा, वो पानी छोड़ता है। तो जब पानी छोड़ेगा तो कैसा लगेगा, हल्का सा लिक्विड जैसा होने लगेगा, एक्वस जैसा होने लगेगा। सो दिस टाइप ऑफ द सॉल्ट इज कॉल्ड एज द इफ्लोरोसेंट सॉल्ट। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? इज इट ओके? तो देखो रिएक्शन कैसा होता है, Na2CO3.10H2O, ये हमारे पास कंपाउंड हुआ, ठीक है ना। अगर आप इस कंपाउंड को एक्सपोज टू एयर करते हो, इट इज एक्सपोज टू एयर, जैसे ही आप इसे एक्सपोज टू एयर करोगे पता है क्या बन जाएगा, Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। बहुत अच्छा रिएक्शन है। क्वेश्चन पेपर अगर एक स्टैंडर्ड बना, थोड़ा सा टिपिकल लेवल अगर बढ़ा दिया, डिफिकल्टी लेवल, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सोडियम वॉशिंग सोडा व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर इट बिकम्स सोडियम मोनोहाइड्रेट। ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, बट अभी केवल एक ही पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा, बाकी 9 पानी के मॉलिक्यूल हट जाएंगे, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द इफ्लोरोसेंस। Okay, so sodium carbonate or the washing soda is which type of the salt? It is the efflorescent salt. अब क्या होगा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर when washing soda is heated, अगर मैंने washing soda को हीट कर दिया, it's become heated, अगर हम हीटेड करते हैं तो पता क्या होता है, तो यहां से पूरे के पूरे पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है, और ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है, एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी, दिस सोडियम कार्बोनेट इज द हाइड्रेटेड और द एनहाइड्रस? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से बताना। दिस सोडियम, ये जो बना है वॉशिंग सोडा को जब आपने हीट किया और जब ये कंपाउंड बना, सो दिस इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट और द एनहाइड्रस सॉल्ट। यस, वेरी गुड रिया, वेरी गुड। एनहाइड्रस वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जलीय, निर्जल, वहां जल नहीं बचा। तो देखो पूरा का पूरा जल गायब हो गया, है ना, जल, जो जल था वो चला गया, ठीक, निर्जल हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज द एनहाइड्रस सॉल्ट। ओके, सो बट ऐसा कब होगा, व्हेन हीटेड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करोगे तो ये पूरा का पूरा पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, एंड एट दैट कंडीशन इट विल फॉर्म द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है ना, दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ओके, एंड दिस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड एज, बहुत अच्छा नाम बता रहा हूं, it is called as soda ash. This anhydrous sodium carbonate is called as the soda ash. मतलब सोडियम की राख, सोडियम का पाउडर जो राख बचा हुआ है, so this is called as the soda ash. Please remember, it's a very much important question. Okay, is it okay to everybody? Is it okay? ओके गुड, शाबाश। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि आज अपने को ये टॉपिक खत्म करना है ना। आगे जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे आज भले 1 घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन आज ये कंपाउंड अपने को खत्म करने हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब भी आपसे मुलाकात होगी तो नए चैप्टर के साथ ही होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दैट इज bleaching powder. The next one is bleaching powder. Okay, bleaching powder. So what is the formula? The formula of the bleaching powder is CaOCl2. ठीक है, please remember, it's very much important.
दैट इज द CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड एज, ये जो कंपाउंड है ना ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज द ब्लीचिंग पाउडर। ओके, so bleaching powder is the CaOCl2, it is called as a bleaching powder। ठीक है ना, तो प्लीज रिमेंबर दैट। एक और अच्छा क्वेश्चन हो जाए, चलो एक और बढ़िया चीज बताता हूं। ब्लीचिंग पाउडर का एक और भी नाम होता है, ब्लीचिंग पाउडर का एक नाम और भी है, और बड़ा मजेदार नाम है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोराइड ऑफ लाइम। है ना, आज पूरे अच्छे से पढ़ लो भाई, हफ्ते में एक दिन आपसे मुलाकात होती है, तो उस दिन की थोड़ा सा ऐसा पढ़ो कि वो सब पे भारी हो जाए। ठीक है ना, दिस इज अनदर नेम ऑफ द ब्लीचिंग। ये सब ऑब्जेक्टिव, ये सब अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चन है बेटा। अनदर नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज द क्लोराइड ऑफ लाइम। अच्छा, एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी द फॉर्मूला ऑफ द लाइम। मालूम है भाई? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी द फॉर्मूला ऑफ द लाइम। चूना, चूना बोलते हैं उसको। Anybody can text? Anybody? Formula of the line। देखो, आज एक नई चीज सिखाता हूं, है ना, एक नई चीज बताता हूं, याद करो। गुड वैष्णवी, वेरी गुड सोहेल, शाबाश। तो वैष्णवी, रिया, सोहेल सभी का आंसर ठीक है, पर बताता हूं देखो होता क्या है। लाइन एक्चुअली तीन टाइप का होता है। एक होता है क्विक लाइन, एक होता है स्लेकेट लाइन, और एक और भी लाइन का काम होता है लाइम स्टोन। सीमेंट इंडस्ट्री से हम लोग जुड़े हैं, तो हम सबको पता है लाइम स्टोन तो इस जमीन में सबसे ज्यादा है जहां पे हम और आप रहते हैं। बट यू प्लीज रिमेंबर दैट दीज थ्री केमिकल्स आर देयर वेयर द लाइम वर्ड केम, जहां पे लाइम वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्विक लाइन? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन है। व्हाट इज द स्लेकेट लाइन? इट इज द CaOH होल ट्वाइस, ये हमारा स्लेकेट लाइन है। एंड व्हाट इज द लाइम स्टोन? इट इज द CaCO3। okay, so these three chemicals are there where the term lime introduced, जहां पे लाइम वर्ड इस्तेमाल होता है। गुड, शाबाश। ठीक है ना, ये तीन ऐसे केमिकल के नाम आप सुनते हो जहां पर लाइम वर्ड का इस्तेमाल होता है। क्विक लाइन मैं बता देता हूं क्या है। जो चूना बाजार में पाउडर के फॉर्म में दिखता है वो हमारा क्विक लाइन है। जब हम चूने को पानी में भिगो देते हैं, ठीक है, आप देखते हो जब कभी व्हाइट वॉशिंग होती है तो चूने को पहले भिगोया जाता है। ठीक, तो आपको पता है उसे क्या बोलते हैं? इस स्लेकेट लाइन की हिंदी जानते हो क्या होती है? अपन इंडियंस है ना, हिंदुस्तानी है, मालूम होना चाहिए। स्लेकेट लाइन की हिंदी होती है बुझा हुआ चूना। बुझा, उसमें पानी डाल करके उसकी रिएक्टिविटी को बुझा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द स्लेकेट लाइन। उसको स्लेकेट लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो लाइमस्टोन है वो तो पत्थर है, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, प्लीज रिमेंबर, बहुत मजेदार चीज है ये। चलो, आप कैसे बनाते हैं वो देखो, है ना। नाउ वी हैव टू डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनता है, देखो ये कैसे बनता है। ठीक, सो द कैल्शियम, दिस ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड when calcium hydroxide reacts with chlorine। जब स्लेकेट लाइन पर क्लोरीन गैस को पास करते हैं, ओके, whenever the chlorine gas is passed through the calcium hydroxide, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम स्लेकेट लाइन पे जब डालते हैं तो यहां पर क्या बनता है? CaOCl2 plus H2O, and this chemical is called as bleaching powder। Okay, and this chemical is called as the bleaching powder। Okay, very good Vaishnavi, shabash। Okay, so this is the basic thing। अच्छा, anybody can text me this bleaching powder, ये जो हमारा bleaching powder है, okay, whenever you will prepare this particular chemical compound bleaching powder,
Take now. So this particular chemical compound, what we are going to prepare, that is a bleaching powder. CaOH whole twice plus Cl2 CaO Cl2 plus H2O. ठीक है ना? तो जब आप स्लेकेट लाइन पर क्लोरीन गैस को पास करोगे तो वहां से ये बनेगा. और उसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लोराइड ऑफ द लाइन. Okay, please remember that. It's a very much important chemical. क्योंकि अच्छा, anybody can text me one use of the bleaching powder. I hope ये सारे बच्चों को आंसर आता होगा. Can anybody text me one use of the bleaching powder? जल्दी से बताओ. Anybody can text? No one? Can anybody text me one use of the bleaching powder? Bleaching powder तो सुना है यार आपने, सबको ही पता होगा. Anybody can text me one use of the bleaching powder? Anybody? No one? Okay. Yes, exactly. Yes. So Riya and Lakshman and Ranvijay. Very good. So they wrote the right answer. क्या है? It can be used in textile industry. Yes, very good. शाबाश, good वैष्णवी, बहुत बढ़िया. तो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करते हैं ना. और दूसरा क्या यूज है? डिसइंफेक्टेंट. वाटर सप्लाई में इसको डालते हैं जिससे कि डिसइंफेक्टेंट का ये काम करता है. एक और अच्छा यूज बताता हूं, याद रखना. इट ऑल्सो यूज टू मेक द वूल अनश्रिंकेबल. जो वूलन कपड़े होते हैं ना, ऊन, अगर वूलन में हम इसको डाल देंगे तो जो ऊन होती है ना वूलन, वो श्रिंक नहीं करती, दूर दूर रहते हैं उनके रेशे. तो उसका इसमें भी यूज होता है. यस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस. ओके, सो द नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड इज, क्योंकि अब एक ही केमिकल कंपाउंड बचा है, एंड दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक, this is the CaSO4 dot half H2O. It is a CaSO4 dot half H2O. ठीक है, मैं बताता हूं इसको क्या बोलते हैं. It is also called as the hemihydrate of calcium sulfate. It is also called as the hemihydrate. आपको पता है हेमी का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री में हेमी का मतलब हाफ होता है. समझ गए ना बात को? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हेमी का मतलब हाफ होता है. सो इट्स द हेमीहाइड्रेट ऑफ द कैल्शियम सल्फेट. ठीक है ना? ये कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट है. बहुत मजेदार सी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान देना. देखो, डबल हाइड्रेट, प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम फोकस करना. डबल हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट. समझे? मतलब अगर कैल्शियम सल्फेट एक है तो पानी दुगना है. इट इज द डबल हाइड्रेट. डबल हाइड्रेट, डबल मतलब दुगना. कैल्शियम सल्फेट एक है तो पानी दुगना हो गया. आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? जिप्सम, जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, जिप्सम. और अगर हेमीहाइड्रेट यूज करते हैं, hemihydrate, so hemihydrate of the calcium sulfate, it is called the POP. CaSO4 dot half H2O, it is called as the POP. ठीक है? अगर कैल्शियम सल्फेट एक है और पानी दुगना हो गया तो ये जिप्सम कहलाएगा. कैल्शियम सल्फेट एक है, पानी आधा हो गया तो ये POP कहलाएगा. अच्छा, एक बात बताओ, anybody can text me 2CaSO4 dot 4H2O. It is the POP or gypsum. It is the POP or gypsum. Please text me 2CaSO4 dot 4H2O. This is the formula for the gypsum or POP. Please text me. It is the formula of the POP or the gypsum. Okay, so very good. Riya, Sahil, then Sibal, Yog, Lakshman, they wrote the right answer.
My dear, this is the gypsum. ये जिप्सम है बच्चा। कैसे है देखो, जिन बच्चों ने है ना गलती से पीओपी लिख दिया उनको चेक करो कैसे लिखा। यहां पर कैल्शियम सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? चलो मैं किसी उस बच्चे से पूछता हूं जिसने पीओपी लिखा, ठीक है? चलो सपोज सानिया फुले, कैन यू टेक्स्ट मी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैल्शियम सल्फेट? सानिया फुले, कैन यू टेक्स्ट मी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैल्शियम सल्फेट? यहां पर कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल कितने हैं? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट, कोई भी बताओ। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ द कैल्शियम सल्फेट? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट हियर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ द कैल्शियम सल्फेट? 2, ये देखो लिखा है। गुड सिबल। एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर? और पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? गुड सानिया। और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? 4, है ना? कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं 2, वाटर के मॉलिक्यूल हैं 4। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ो तो इसका दुगना हो गया, 2 2 जा 4, डबल हाइड्रेट। हाइड्रेट दुगना है, हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है, वाटर डबल हो गया। और अगर ये डबल हो गया तो ये जिप्सम हो गया। तो अगर हेमी है तो क्या होगा? अच्छा बताओ, ये किसका फॉर्मूला है? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट 2CaSO4 डॉट H2O। अब ये क्या है? ये पीओपी है, जिप्सम है। This is the POP or the gypsum. If I am writing 2CaSO4 dot H2O, it is the POP or gypsum. Yes, very good. बहुत बढ़िया, शाबाश। It is the POP, क्योंकि यहां कैल्शियम सल्फेट 2 है तो पानी 1 है, ठीक है? तो इट इज द हेवी हाइड्रेट, आधा पानी हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? पीओपी का। ये किसका फॉर्मूला बन गया? पीओपी का, ठीक है? ये बेसिक सी चीज थी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, है ना? ये कैसे बनता है? जब आप जिप्सम को हीट करोगे, when the gypsum is heated, then what the chemical compound you will get? POP। वहां से POP बनता है ना? when the gypsum is heated, मतलब सपोज मैंने बोला CaSO4 डॉट टू H2O। देखो कैल्शियम सल्फेट 1 है, पानी दुगना हो गया, ये जिप्सम हो गया। इसे हीट कर दिया, है ना? जब इसे हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। कितना पानी है? 2 है ना? आधा और 1.5 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O हो गया, ये 3/2 H2O हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? दिस इज द POP। ये POP हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया? जिप्सम का। तो कैसे बनता है POP? when the gypsum is heated, when the gypsum is heated then the POP will form. Okay, so my dear, that's all for this particular chapter. ये इस चैप्टर के केमिकल कंपाउंड थे। I will also send the notes to you right now after your class. Just go through that, and from the next term I will start with your new chapter, that is the metals and non-metals. So have you enjoyed the class? Have you enjoyed the class or not? जल्दी बताओ। Okay, good. Shabash. Okay, so from next class I will start with the next chapter, that is metals and the non-metals. Okay, thank you dear. Goodbye. Thank you.